Hello, good evening, and welcome one and all present, my dear learners, in the platform of the Pinnacle Academy with me, Aniket. So, how are you all? We have started poetry classes, and we have started from class 11th English lective, and we have taken the first poem, that is "Let Me Not to the Marriage of True Minds." It is not a poem, but it is a sonnet. Sonnet number 116. It is a sonnet number 116. I have already told you about what is sonnet. Sonnet is a 14 lines poem. What? 14 lines poem. And last two lines are the concluding couplet of above 12 lines. And I have already told you about William Shakespeare, because this 154 sonnets are written by William Shakespeare, and it is sonnet number 116, that is "Let Me Not to the Marriage of True Minds." So, who was William Shakespeare? William Shakespeare was one of the most prominent and greatest dramatist, playwright, author, writer, poet, artist, and he's also a great person of his period, because that period was the Elizabethan period. That period was Renaissance period. That period was known as the early modern period, that is from 1500 to 1660. But even though Shakespeare was the most prominent writer, therefore the age was also known as the Shakespearean era. Okay, so I have told you about the William Shakespeare and what is sonnet in the previous video. You can go and you can extract from that video that what you want. So let us come to the point that today's our topic is to read the poetry, that is "Let Me Not to the Marriage of True Minds." Okay, first of all, let me tell you about that what is the meaning of "Let Me Not to the Marriage of True Minds." सच्चे प्यार करने वालों के विवाह में मुझे बाधा मत बनने दो। विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं इस कविता की पहली ही लाइन में, पहली ही लाइन जो इसकी टाइटल भी है कि सच्चे प्रेम करने वालों के विवाह में कोई भी बाधा मत आने दो, मुझे बाधा मत बनने दो। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग 14 लाइंस की यहाँ पे ये पोइट्री है, जिसमें से 2 हमारा 13 एंड 14th लाइन हमारा कंक्लूडिंग कपलेट होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एंड देयर इज ऑलरेडी 12 लाइंस। आई विल डील यू विथ Hindi and English both. And I have also told you that it is the video with not only the purpose for Jackboard students, but it is also for CBSE and ICSE students if they are studying English elective, and it may also help to the higher level education in your future. So let me come and see what the poetry is. Let me not to the marriage of true minds. मुझे सच्चे प्रेम करने वालों के विवाह में बाधा मत बनने दो। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यानी कि बाधा मत आने दो। इम्पेडिमेंट्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स लिखा हुआ है। इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है बाधा या रुकावट। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा या रुकावट। तो सच्चे प्रेम करने वालों के विवाह में बाधा मत आने दो, बाधा मत बनो। लव इज नॉट लव, लव लव नहीं है। प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम कब नहीं है? विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। अल्टर्स का मतलब होता है बदलना, और अल्टरेशन का मतलब होता है आंशिक बदलाव। देखिए, बहुत ही फैंटास्टिक यहाँ पे ये लाइन बोला गया है। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स।
प्रेम तब प्रेम नहीं है जब वो आंशिक बदलाव देखकर भी, ठीक है, जब वो आंशिक बदलाव देखकर भी क्या करता है, बदल जाता है। सच्चा प्यार वह नहीं है जो थोड़ी सी भी बदलाव देखा, थोड़ी सी भी समस्या देखा, थोड़ी सी भी संकट देखा और बदल गया कि नहीं, मुझे इससे प्यार नहीं करना था, ये लड़का ऐसा नहीं है, ये लड़की ऐसी नहीं है, ठीक है, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और किसी बाधा को देख करके वो मूव ऑन कर गया या फिर उससे अलग हो गया, उससे बिछड़ गया कि अरे नहीं, मुझे नहीं, वो मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, वो कास्ट अलग है, वो रिलीजियन अलग है, तो दैट इज नॉट द मैटर। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो हल्की सी भी बाधा देख करके आपको नहीं बदलना है। अगर आंशिक छोटी सी भी बाधा देख करके, छोटी सी भी समस्या देख करके कि मेरे इस प्रेम के रास्ते में ये चीज मेरे लिए बाधा आ रही है, जाति, धर्म, पेरेंट्स, फैमिली या फिर कुछ और भी चीज है जो मेरे रास्ते में बाधा आ रही है, यानी कि प्रेम के रास्ते में बाधा डाल रहा है, और उसको देख करके आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं और अपना प्रेम बदल लेते हैं, यानी कि उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं, और उनके कारण से आप झुक जाते हैं और दूसरी ओर मूव ऑन कर जाते हैं, जहां पे आपके पेरेंट्स बोलते हैं या फिर जहां पे आपके फैमिली वाले बोलते हैं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो ये हमारा 4 लाइन हो गया, 1 स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा इज, ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth's unknown, although his height be taken. चलिए पहले मैं कुछ यहाँ पे हिंदी मीनिंग्स आपको बतला देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो देखिए, एवो फिक्स्ड मार्क कहने का मतलब है कि जिस तरीके से एक तारा को हम देखते हैं, ठीक है, आसमान में, कि वो तारा, मान लीजिए कि ध्रुव तारे को हम देख रहे हैं, तो वो तारा हमें डेली वहीं पे प्रतीत होता है, डेली वहीं पे नजर आता है जहां पे वो है, ठीक है, तो वो बिंदु जो है, वो तारा जो है, वो वहां पे फिक्स्ड है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स्ड क्या है, सो ठीक है, यहाँ पे मीनिंग कुछ और है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वॉन्डरिंग बार्क, यानी कि भटकता हुआ जहाज, ठीक है, जो टेम्पेस्ट यानी कि तूफान में खो गया है, वह जहाज जो तूफान में खो गया है और भटक गया है रास्ता। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इसका मीनिंग डील करता हूं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। प्रेम क्या है? एक फिक्स्ड बिंदु है, ठीक है। प्रेम का क्या होता है? एक फिक्स्ड गोल होता है। लव इज ऑलरेडी ए गोल, बट लव हैज ऑल्सो ए गोल, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं पोएट कि ओ नो, ओ नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। प्रेम जो है वो फिक्स्ड होता है एक जगह पे, ठीक है, कि प्रेम प्रेम है, प्रेम हमेशा के लिए फिक्स होता है, प्रेम कभी बदलता नहीं, ठीक है। आगे की लाइन में आपको पता चलेगा। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। प्रेम हमेशा अडिग होता है और वो तूफान को देख करके कभी भी नहीं डगमगाता है, ठीक है ना सटीक सा लाइन। प्रेम हमेशा एक फिक्स होता है, हमेशा अडिग होता है और कभी भी तूफान को देख करके नहीं घबराता है, कोई भी बदलाव, कोई भी समस्या को देख करके नहीं घबराता है। दैट इज एक्चुअल लव। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्टिंग बार्क whose words unknown although his height be taken। देखिए यहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिक लाइन बोला गया है, क्या बोला गया है थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन 2 लाइन का 6 और 7 लाइन का मतलब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये समुद्री इलाका है, ठीक है, और कोई नाव भटक गया है, तो वो नाव जो भटक गया है वो एक जगह पे फिर से जा करके मिलेगा कैसे? कुछ कुछ इस तरीके से एक लाइट हाउस होता है। आई होप दैट you are better known that this is a lighthouse, and what is lighthouse?
Hope that you all are familiar about the lighthouse. Lighthouse समुद्र के किनारे में होता है जो नाव भटके हुए पानी जहाजों को रास्ता दिखाने का, मार्ग दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वो समझिए पहले। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, प्रेम हमेशा ही अडिग होता है, एंड दैट नेवर लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन, वो तूफान में कभी भी डगमगाता नहीं है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये फिक्स्ड मार्क जो है ना, ये फिक्स्ड मार्क बोला गया है। तो समुद्र में ये जो लाइट हाउस होता है पानी जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए, तो ये लाइट हाउस का जो लाइट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कभी भी स्थान चेंज नहीं करता है। अगर पानी जहाज कहीं रास्ता भटक गया है तूफान में, अगर पानी जहाज का कंपास काम करना बंद कर दिया है, तो वो सबसे पहले देखेगा कि हमारे सबसे नजदीक में लाइट कहाँ नजर आ रहा है। वो सबसे पहले इस टावर को ढूंढने का कोशिश करेगा, लाइट हाउस को ढूंढने का कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से वो उस लाइट हाउस के लाइट को देख करके, जो सबसे ऊंचा में लगा रहता है, उसको देख करके वो उसके तरफ बढ़ेगा। दिशा उसको पता नहीं है कि कौन सी दिशा है, तो वो उस लाइट हाउस की लाइट को देख करके वो उस तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये लाइट हाउस का जो लाइट होता है ना, हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इसी लाइट हाउस के लाइट को बोला गया एवर फिक्स्ड मार्क। और वो जो लाइट है ना, ये जो लाइट है वो है लव। ठीक है, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड नेवर बी सेकन। और तूफान में खोए हुए पानी जहाज जो कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो इस लाइट हाउस के लाइट को देख करके आ सकते हैं इसकी ओर और अपना रास्ता खोज सकते हैं पुनः। तो उसी तरीके से फिक्स्ड मार्क को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बल्कि प्रेम करते रहना है और तूफान में भी लड़ना है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। और ये जो लाइट होता है ना, ये जो लाइट हाउस का लाइट होता है, एवर फिक्स्ड मार्क जो होता है, वो होता है स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। वो एक स्टार की तरह होता है, एक चमकते हुए तारे की तरह होता है। ठीक है, किसके लिए? वॉन्डरिंग बार्क के लिए। बार्क मतलब तो होता है खाल, होता है पेड़ का खाल, लेकिन वो बार्क खाल का नहीं होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ वॉन्डरिंग बार्क एक फ्रेज के तौर पर यूज हुआ है, और यहाँ पे बोला गया है एवरी वॉन्डरिंग बार्क, भटके हुए पानी जहाजों को जो तूफान में खो गए हैं और इस लाइट हाउस के फिक्स्ड मार्क को देख करके लाइट हाउस की ओर आ रहे हैं। Whose words unknown। और इस लाइट हाउस का जो लाइट है ना, वो उस भटके हुए जहाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। तो ये जो लाइट है ना, उसका जो मूल्य है वो बहुमूल्य है। Whose worth unknown, worth is unknown। उसका वर्थ यानी कि उसका मूल्य क्या है? अननोन है, जिसको हम नहीं जान सकते हैं, उसका मूल्य बहुमूल्य है। ठीक है, Although his height be taken, इवन की उसका हाइट जो है यानी कि गहराई जो है वो मापा हुआ है। Love is not times full, love's not times full। प्रेम क्या है? समय का पाबंद नहीं है। फूल मतलब यहाँ पे ये मूर्ख समझने वाला बात नहीं है, फूल का मतलब है कि पाबंद। ठीक है, लव इज नॉट टाइम्स फूल, प्रेम समय का पाबंद नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स। देखिए यहाँ पे हमारा दो स्टांजा खत्म हो गया, तीसरा स्टांजा हमारे यहाँ पे शुरू हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है? लव इज नॉट टाइम्स फुल, यानी कि प्रेम जो है वो समय का पाबंद नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, यहाँ तक कि उसके जो जिस लड़की से अगर हम प्रेम करते हैं, तो उस लड़की का जो गाल है, जो होंठ है, अगर वो उसी तरीके से गुलाब की तरह खिला हुआ नहीं है, तो भी हमारा प्रेम वैसा ही कांस्टेंट बना रहना चाहिए। ठीक है, अभी आगे का लाइन में वो क्लियर होते जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्यार जो है वो समय का पाबंद नहीं है। ठीक है, बुढ़ापे में भी लोग प्रेम करते हैं। ठीक है, अपने दादा दादी को, नाना नानी को देखे होंगे आप कि कितना प्रेम है उनके बीच में। ठीक है, अन्य लोगों को भी आप देखे होंगे, अन्य जो ओल्ड एज पर्सन लोग हैं। ठीक है, या अपने पेरेंट्स को भी देखे होंगे कि जैसे जैसे ओल्ड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो और बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका प्रेम और गहरा होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रेम क्या है? वो कभी भी कम नहीं होने वाला चीज है, प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि लव्स नॉट टाइम्स फुल, प्रेम समय का पाबंद नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, यहाँ तक कि उसके चिक्स यानी कि गाल और लिप्स यानी कि होंठ गुलाबी है या नहीं, बुढ़ापे तक। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे हमारे शरीर में हमारे हमारे जो मांसपेशी वो उनमें झुर्रियां खाने लगेंगे। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। देखिए सिकल्स का मतलब क्या होता है? सिकल मतलब होता है हंसुआ।
जो कुछ इस तरीके का एक औजार होता है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से दांत निकले हुए रहते हैं, ठीक है, नुकीले दांत। और इसके माध्यम से आप देखे होंगे गांव घरों में लोग जो खेती करते हैं वो किसान इस हंसुए का इस्तेमाल करते हैं फसलों की कटाई में, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि जिस तरीके से फसलें हंसुए में दांत निकला हुआ रहता है, वो झुर्रियां खाई हुई रहती है, उसी तरीके से लव नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। यानी कि प्रेम समय का पाबंद नहीं है, इवन की यद्यपि वो बुढ़ापे में हो या जवानी में हो, जब से आप प्रेम करना शुरू किए हो और जब आपका प्रेम आगे बढ़ता जाए, आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते बढ़ते जाए, तब तक विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, जब तक कि उसके गालों में झुर्रियां नहीं आ जाती, जब तक उसकी होंठ और गालों में झुर्रियां नहीं आ जाती है, जब तक कि उसके होंठ और गाल लटक नहीं जाते हैं, उनके मांसपेशी कमजोर नहीं हो जाते, ढीले नहीं हो जाते हैं, तब तक भी हमारा प्रेम वैसे ही कांस्टेंट बना हुआ होना चाहिए। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। बहुत ही शानदार सा और सटीक लाइन यहाँ पे बोला गया है कि लव बदलता नहीं है, यानी कि प्रेम क्या है, क्षणिक नहीं है, ठीक है, प्रेम क्षणिक नहीं है। विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी कि प्रेम क्षणिक नहीं है। अगर प्रेम हर घंटे बदलता है, प्रेम हर सप्ताह बदलता है, प्रेम हर क्षण बदलता है, दैट लव इज नॉट लव, दैट इज कॉल्ड लस्ट, दैट इज कॉल्ड द हंगर ऑफ सेक्स, दैट इज कॉल्ड द हंगर ऑफ बॉडी, दैट इज नॉट लव। I hope that you are understanding it very well. But bears it out even to the edge of doom. Doom मतलब क्या होता है? Doom मतलब होता है कयामत की रात तक। देखिए फिर से समझिए इसको। लव इज नॉट टाइम्स फूल, प्रेम समय का पाबंद नहीं है, दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, उसके गाल रोजी हैं या नहीं है, उसके गाल टाइट है या नहीं है, उसके गाल वैसे ही है या जवानी में जैसे थे वैसे ही है या नहीं है, उसके पाबंद नहीं है। प्रेम प्रेम है, प्रेम जो हमेशा जब से आप शुरू कर किए थे करना तब से लेकर के आपके मरने तक या फिर आपके मरणोपरांत तक वो प्रेम वैसा ही रहे। विथ हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, यानी कि जब तक कि उसके शरीर में, उसके गालों में, उसके होठों में झुर्रियां आ जाए, तब तक भी आपका प्रेम वैसा ही होना चाहिए। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी कि प्रेम क्षणिक नहीं है, बल्कि प्रेम प्रेम है, वो प्रेम है जो हर घंटे नहीं बदलता, हर क्षण नहीं बदलता, हर पल नहीं बदलता, हर सप्ताह नहीं बदलता, हर महीने नहीं बदलता, हर साल नहीं बदलता, यानी कि प्रेम कभी नहीं बदलता। अगर आप अपने बिलोवेड से सच्चा प्रेम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रियल एंड एक्चुअल लव। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। प्रेम हमेशा अगर बदलता है तो वो प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम क्या है, जब से आप प्रेम करना शुरू किए हैं तब से लेकर के कयामत की रात तक अगर आपका प्रेम वैसा ही बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड द रियल एंड एक्चुअल लव, दैट इज द नेचुरल लव। अगर कयामत की रात तक, कयामत की रात कहने का मतलब है कि हम तो अगर मान लीजिए कि 1000 साल के बाद कयामत की रात आने वाली है, तब तक तो हम जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारा प्रेम, अगर हमारी बिलवेड के प्रति, हमारी महबूबा के प्रति, हमारी गर्लफ्रेंड्स के प्रति, अगर गर्लफ्रेंड के प्रति यानी कि प्रेमिका के प्रति अगर वैसा ही कांस्टेंट बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड लव। क्योंकि यहाँ पे विलियम शेक्सपियर एक लड़की को ही कोट करके ये बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट फॉर द ए गर्ल बट इट इज फॉर हिज फ्रेंड। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक लड़की को यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे हैं कि अगर हम उस लड़की से प्रेम करना शुरू किए हैं तो हमारा प्रेम शुरू से लेकर के अंत तक अगर वैसा ही बना हुआ है जैसा कि हम शुरू में प्रेम करना शुरू किए थे, तो दैट इज कॉल्ड द रियल एंड एक्चुअल लव। प्रेम की कोई बाउंड्री नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। ये हमारे विलियम शेक्सपियर सर का कहना है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम में कोई बाधाएं नहीं होती, प्रेम में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, प्रेम में कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए। प्रेम का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। प्रेम न काला होता है, न प्रेम न बुरा होता है। प्रेम प्रेम होता है। लव इज लव, लव इज नॉट लस्ट, लव इज नॉट द लव इज नॉट द हंगर ऑफ सेक्स।
बट लस्ट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो हमें अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें हमारे बीच में जो प्रेम है वो किसी जाति को देख करके, किसी धर्म को देख करके, किसी मजहब को देख करके, किसी समस्या को देख करके बदलना नहीं चाहिए। अगर हम किसी दूसरे धर्म के लोग लड़की से प्यार कर रहे हैं, किसी दूसरे जाति की लड़की से प्यार कर रहे हैं, किसी दूसरे कौम के लड़के से प्रेम कर रहे हैं, तो हमारा लव वैसा ही कांस्टेंट बना हुआ रहना चाहिए जैसा कि शुरुआत में हमने करना शुरू किया था। ये नहीं कि बाद में हमारे बीच में अड़चने आ जाएंगी, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, कौम को लेकर के, समाज को लेकर के, तो दैट इज नॉट लव। Okay, hope that you all have been understood it very well, and this is really a very fantastic poetry. अब लास्ट में यहाँ पे 2 लाइन में क्या बोलते हैं पोएट पोम में, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूडिंग कपलेट। कंक्लूडिंग कपलेट, इस कंक्लूडिंग कपलेट में पोएट क्या बोल रहे हैं, सो देखिए, इफ दिस बी एरर, यदि यहाँ इस ये जो 12 लाइन लिखा हुआ है ना, यहाँ 12 लाइन में जो भी आप समझे, जो भी मैंने समझाया, इफ दिस बी एरर, अगर इसमें कोई भी गलतियां हैं, कोई भी खामियां हैं, अगर कोई भी आप गलती निकाल देते हैं, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और वो गलती मेरे ऊपर सिद्ध हो जाती है, यानी कि इन 12 लाइंस में सिद्ध हो जाती है, आप कोई भी गलती यहाँ पे निकाल करके दिखा दीजिए अगर पोएट ने कुछ गलत बोला है तो, और ये इसको प्रूव करके बता दीजिए। अगर ये प्रूव हो जाता है कि पोएट ने यहाँ पे कुछ भी गलत लिखा है, ये सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, इट इज नेवर रिट, यानी कि ये कभी भी नहीं लिखा गया। रिट मतलब होता है राइट, ठीक है, इसका मतलब है आपका यहाँ पे राइट। आई नेवर राइट, यानी कि मैंने कभी नहीं लिखा। अगर ये गलत मेरे ऊपर सिद्ध हो जाता है तो मैंने ये कभी नहीं लिखा। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी पुरुष ने कभी प्रेम किया। अगर ये 12 लाइन लिखा हुआ कहीं पे भी प्रूव कर देते हैं आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये 12 लाइन गलत है, तो वो खुद बोलते हैं कि मेरा लिखा हुआ ये जो कविता है वो मैंने कभी नहीं लिखा, और नोर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी पुरुष ने कभी प्रेम किया। तो लव इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, अंडरस्टैंड मैन, this is this is really a very fantastic poetry that he has he depicted a girl that she is a very beautiful, pretty, rosy lips and cheeks, and the rosy lips and cheeks are not constant from when you started to love to the old age. But if your love is constant, then the love is actual love. So it was a poem. Let me not do the marriage of true minds. अगर आप प्रेम करना शुरू किए हैं तो आपके प्रेम में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है उसको आपको पार पाना है, न कि उस बाधा को देख करके, जाति धर्म मजहब की बाधा को देख करके, समाज की बाधा को देख करके, देश दुनिया की बाधा को देख करके आपको घबराना है, बल्कि उस प्रेम को पूरा करना है। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे कि दूसरे देश की लड़की इंडिया में आकर के इंडियन लड़के से शादी कर रही है, या फिर इंडिया की कोई लड़की है जो दूसरे देश के पुरुष के साथ में शादी कर रही है, या फिर इंडिया का कोई लड़का है जो दूसरे देश में जाकर के वहां पे उस लड़की से, दूसरे देश की लड़की से शादी कर रहा है और वहां पे जाकर के बस जा रहा है। तो लव का कोई बाउंड्री नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। And I hope ki the parents will also understand it ki there is no boundary of love, there would be no impediments, no alteration in love. Go and understand the philosophy of love, that what is love. So hope that you all have been understood it very well, and जो भी आपको नहीं समझ में आया हो वो कमेंट के माध्यम से जुड़ करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक to all my dear learners for your examination and forthcoming examination. Okay, thank you everyone.